نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی انشاءاللہ اب ہم نے آج اپنی سورہ الشورى کا آیا 105 سے کرنا ہے، لیکن 104 میں خل لاسٹ ٹائم ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا تو وہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اچھا جی 104 میں تو یہ ہماری کنٹینیوٹی پیچھے سے جو چل رہی تھی نا اس کے ساتھ ہی یہ آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اور حقیقت یہ ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا ہی زبردست اور رحیم ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے جو ہے وہ پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور اس کے ساتھ جب ہم نے پڑھا تھا ان کی قوم نے کیسے انکار کیا، تو اس کے ساتھ جب وہ بات ختم ہوئی تو یہ اس کی لاسٹ آیا ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں 105 سے قوم لوط کا قصہ۔ 105 ہے قوم لوط علیہ السلام نے رسولوں کو جھٹلایا۔ 106 یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ 108 لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لکھا ہوا ہے کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، تو ہم نے تو دیکھیں یہی پڑھا ہے نا کہ قوم نوح پہ ایک ہی حضرت نوح علیہ السلام کو ہم سنتے ہیں کہ رسول تھے، لیکن رسولوں کا ذکر آیا ہے کہ اٹ مینس مے بی مور دین ون ہوں جو ہمیں علم نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح ایک تو اس بات کا ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جیسے یہ کہا کہ یاد کرو کہ تمہارے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، تو ہوتا یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ جس قوم کی طرف رسول بھیجتے تھے تو وہ یوزلی انہی قوموں میں سے ہوتے تھے، تاکہ انہی کی طرز و طریقے جو ہیں وہ ان کو پتہ ہوں، ان کی زبان انہیں آتی ہو، کوئی لینگویج بیریئر نہ ہو، کوئی کلچرل ڈفرینس نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں اگر ہم بھی یہ سوچیں کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں یا کہیں بھی کوئی جاپانیز یا کوئی چائنیز آ کے اگر ہمیں پڑھانا شروع کرے گا تو اس کو شاید اس طرح ہماری چیزوں کا پتہ نہ ہو، ہمارے جگہوں کے ہمارے مسائل کا بھی نہ پتہ ہو۔ جیسے پاکستان میں اگر کوئی جہیز لیتے ہیں دیتے ہیں اور ان کو کیا پتہ، میں بھی اگر آپ کہیں کہ جی پیرنٹس جو ہے وہ شادی کے اوپر بچیوں کو کچھ دیتے ہیں تو میں بھی دل سے او دیٹس سو نائس آف پیرنٹس ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سیم ہی جگہ سے، سیم ہی ماحول کے، سیم کلچرلی جو ایشوز ہیں ان کا پتہ ہونا، لینگویج بیریئر نہ ہونا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہوتا کہ رسول جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ہر بات کو سمجھتے ہوں۔ تو اس لیے جب ذکر آیا کہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، تو اٹ مینس کہ جو اس قوم کے اندر سے یہ رسول اٹھائے گئے تو اٹس سارٹ آف کہ وہ بھائی چارے میں ان کے ساتھ ہی تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب اور دوسری بات کیا کہی پہلی کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو،
अब अगर डर के ऊपर भी हम गौर करें ना, तो डर बड़ा ही बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐसा इमोशन है जो अल्लाह सुब्हानह तआला ने बनाया है। वैसे तो तमाम इमोशंस ही इम्पोर्टेंट है अल्लाह सुब्हानह तआला ने जो बनाए हैं। लेकिन देखिए उसमें डर के को डिस्कस कर लेते हैं कि डर कितना इम्पोर्टेंट इमोशन है, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान डर की वजह से कर लेता है ना। क्योंकि डर जो होता है वो इंसान को मोटिवेट कर देता है। या किसी भी चीज़ का डर हो उसको मोटिवेट कर देता है, उसके अंदर एक एनर्जी पैदा कर देता है, और कई दफ़ा डर इंसान को फ़ोकस भी करा देता है। जैसे हमारा कोई एग्ज़ाम है, कुछ है, अगर हमें डर लग रहा होता है, तो हम उसमें ज़्यादा फ़ोकस होके पढ़ाई करते हैं ना। वरना कई दफ़ा बच्चे भी ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम है, टेस्ट है, तो इधर-उधर घूमते रहेंगे, खेलते रहेंगे, बाय द टाइम रात के 12 बजेंगे तो उनको डर लगेगा कि सुबह तो एग्ज़ाम है, तो फिर वो फ़ोकस कर लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह होता है कि कई दफ़ा हमें किसी चीज़ के छिनने का डर होता है, या पैसों के नुकसान का डर होता है, या हम किसी चीज़ के अंदर नहीं आगे कोई चीज़ करते कि ये हमें डर है कि ये ऐसे ना हो जाए। तो उसकी वजह से हम प्रिकॉशनरी हो जाते हैं ना, कि फलानी चीज़ का डर है तो हम वो प्रिकॉशनरी ले लेते हैं उसमें मेजर्स। तो एक तो ये हो गया कि हम मोटिवेशन फ़ोकस हमारा हो जाता है, दूसरा है कि हम कुछ चीज़ों के प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेते हैं, और तीसरा चीज़ क्या हो जाती है कि मोटिवेशन भी होती है। कई दफ़ा आपको जब ये डर हो कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा। जैसे अगर हमारे घर में दावत है और अगर हम दावत में काम नहीं करेंगे, तो फिर फ़ियर और डर तो होगा ना कि अब दावत में काम नहीं किया तो फिर मेहमानों को एंटरटेन कौन करेगा, ठीक है? तो इसलिए वो जो चीज़ है वो फिर आपको, चाहे आप थके हों, चाहे आप ऑफ़िस से आए हों, लेकिन आपको पता है आपके पास मेहमान आने हैं, तो वो फिर आप होते हो फिर ये कैसे होगा? तो आप उससे मोटिवेट होके काम भी करते हैं। तो ये डर भी जो अल्लाह सुब्हाना से ताला से जो है ना कि तुम डरते नहीं हो, तो बड़ा अच्छा इमोशन है इस वज़ह से कि इंसान जब ये देखता है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी क़यामत वाले दिन, तो वो एक तो फ़ोकस करता है अपने ऊपर कि मैं देखूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा। और फिर ये है कि उसके अंदर ये है कि वो अपने आप को मोटिवेट भी करता है। कई दफ़ा इंसान से दिल नहीं करता, जैसे 5 वक़्त की नमाज़ है, फ़र्ज़ करें आप थक गए, आपका दिल नहीं कर रहा नमाज़ पढ़ने को, लेकिन आप अपनी अकाउंटेबिलिटी के डर से उसको करेंगे। यू विल पुश योरसेल्फ कि उठ के मुझे ये करना चाहिए। तो इसलिए डर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इमोशन है, और हमें मतलब इससे पुट ऑफ नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं अल्लाह सुब्हानह तआला से नहीं डराएँ, सिर्फ़ रहम की बात करें, लेकिन ये डराने की बात नहीं है। ये इसलिए बताया जाता है कुरान में, अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा है कि मुत्तकीन का जो ज़िक्र किया है, तो वो उन्हीं के ऊपर है जो अल्लाह सुब्हानह तआला से डरते हैं। तो जब तकवा हम चाहते हैं कि हम हो, तो तकवा इख्तियार करने के लिए तो अल्लाह का डर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम डरेंगे नहीं, तो फिर तकवा नहीं हम इख्तियार कर सकते ना। तो फिर इसीलिए पहली बात जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछी, तो कहा, "क्या तुम डरते नहीं हो?" कि डर नहीं है, बेखौफ हो गए हो, बेलगाम हो गए हो, अल्लाह का डर ना हो, अल्लाह का खौफ ना हो, अकाउंटेबिलिटी का डर ना हो, तो कोई भी इंसान बेलगाम हो जाए। कोई भी नहीं कहे कि ठीक है, किसी को पाबंदियाँ पसंद ना आएँ। हर कोई कहेगा कि नहीं ठीक है, बेशक पाबंदियों से आज़ादी हो जाए तो ठीक है। अच्छा, और फिर दूसरी बात क्या आगे हमने पढ़ी कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। तो इमानत का हमने देखा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने जो अमानत उनको दी है, या जो उनके नाम ड्यूटी लगाई है, उसको एज़ इट इज़ उन्होंने परफ़ॉर्म करना है। अच्छा, अब उन्होंने नेक्स्ट में फिर कहा, लिहाज़ा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। अब इसमें हमने देखा है कि जब भी हम ये नबियों का रसूलों का ज़िक्र पढ़ते हैं, जो प्री इब्राहिमिक दौर के जो रसूल थे ना, उनका जब हम पढ़ते हैं तो कहीं हमें किताब का ज़िक्र नहीं आता। हमेशा ये आता है कि तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। और किताब का ज़िक्र क्यों नहीं है? एक तो क्वेश्चन बात ये हो सकता है किताब हो ही ना, अल्लाह सुब्हानह अल्लाह ने किताब भेजी ना हो, और हो सकता है कि अगर कुछ हो भी सही, तो उस वक़्त उसको प्रिज़र्व करने का कोई ज़रिया ना हो। क्योंकि जैसे हम साइंटिफिकली जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि राइटिंग जो है तकरीबन 6000 या 7000 ईयर्स पहले इजाद हुई। तो उस वक़्त ही जब लिखना आया, तो फिर पढ़ना भी उसके साथ ही आया। तो हो सकता है कि ना हो। तो जो डायरेक्ट बात कुरान में आई है वो यही है कि तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, यानी रसूल की इताअत करो। अब क्या होता है, जैसे कुरान में आता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और जगहों पे भी आया है। तो बहुत से लोग ये ऐसे कहते हैं कि नहीं, हमें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुरान मिला है, तो हम सिर्फ़ कुरान ही को देखेंगे। हम रसूल की एज़ सच इताअत नहीं करेंगे। हम हदीस की या सुन्नत की इताअत नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ जो है ना बस कुरान ही को देखें। तो अगर ऐसी बात होती कि रसूलों की इताअत ज़रूरी ना होती, तो ये जितने भी हम अब नबी पढ़ेंगे ना, हज़रत नूह अलैहि सलाम, हज़रत सालेह, हज़रत हूद अलैहि सलाम, तो उन सब के साथ इस तरह है कि उसमें जितने भी इब्राहीम अलैहि सलाम के पहले से पहले प्रॉफ़िट थे, तो बुक का ज़िक्र कहीं नहीं आएगा। तो
और सबके साथ ये आता है कि फत्तकुल्लाह व अतीऊन के अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। तो इससे साबित होता है कि रसूलों की अताअत भी उसी तरह करना ज़रूरी है। और इन रसूलों के साथ भी देखें, जो रसूल करते हैं वो सुन्नत होता है, जो वो कहते हैं वो हदीस होती है। तो कुरान पाक में खुद ही वो हदीस और सुन्नतें जो पुराने रसूलों की जितनी-इतनी इम्पोर्टेंट थी, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका ज़िक्र खुद कर दिया, व्हिच शोज़ कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वो तमाम चीज़ें जो हैं उसी तरह ही करें, जैसे हमें कुरान और हदीस और सुन्नत में हमें मिलती हैं। अच्छा जी। अब फिर दोबारा, अब ये देखिए एक दफ़ा दोबारा ज़िक्र किया डर का, एक दफ़ा पहले ज़िक्र किया, अब दोबारा ज़िक्र किया। अब 109 में है, मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। तो ये भी देखें बहुत ज़रूरत है कि वो उनको ये बता रहे हैं कि मेरा कोई तुम्हारे साथ मतलब एसोसिएटेड नहीं है। ये सेम चीज़ें ना रिपीट हुई हैं फॉर एवरी प्रॉफिट, हम देखते जाएँगे। हमने पहले सूरह शूरा में देखा था ना कि इसमें बहुत सी आयत हैं जो रिपीट होकर आई हैं। तो जिससे ये बताया जाता है कि जितने भी प्रॉफ़िट्स आते आए हैं ना, उनमें ये कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि वो उन्होंने मतलब उनको ये दिखाना चाहते थे कि उनको कोई लोगों से मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने कभी भी उजरत का या उस चीज़ का मुतालबा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना ओहदा चाहिए, ना पॉलिटिक्स चाहिए, ना तुम्हारा पैसा चाहिए, ना शोहरत चाहिए, नथिंग। तो वो ताकि उनको ये हो कि जब कोई वर्ल्डली फ़ायदा नहीं है, तो फिर ये बंदा ऐसे क्यों कर रहा है, राइट? तो इसलिए ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तबलीग का, कि जो लोग अगर करते हैं तबलीग, तो बहुत ही अच्छी बात हो कि अगर वो अपने सेल्फ सफिशिएंट हो, तो ये अच्छी बात होती है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि इसका इनका इनसे कोई मतलब नहीं है, कि लोग बड़ा आपको जज भी करते हैं और देख भी लेते हैं, तो फौरन आपकी इंटेंशंस दूसरी तरफ भी हो सकती हैं। ऑल्दो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अगर दीनी तालीम कर रहे हैं तो उसके लिए आप उजरत ले सकते हैं, हलाल है। ऐसी इसमें मतलब ममानियत नहीं है, लेकिन रसूल नहीं लिया करते थे। अच्छा, अब फिर देखें एक दफ़ा दोबारा 110 में फिर आया, फत्तकुल्लाह वातिऊन, बस तुम अल्लाह से डरो और बगैर किसी खटक के मेरी अताअत करो। ये सेम है जो 108 में आया, फत्तकुल्लाह वातिऊन, और सेम है 110 में फत्तकुल्लाह वातिऊन, के 2 दफ़ा आया। मेबी इसका रीज़न ये हो कि उलमा कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बहुत लंबा टाइम पीरियड था, तो 2 दफ़ा एम्फसाइज़ किया गया कि वो जब वो तबलीग कर रहे थे अपनी कौम को, तो उन्होंने एक दफ़ा कहा और फिर एम्फसाइज़ कुरान में किया, ये कहने की वजह कि उन्होंने बहुत तबलीग की। 111 में उन्होंने जवाब दिया, क्या हम तुझे मान लें, हालांकि तेरी पैरवी रजील तरीन लोगों ने इख्तियार की है। ये जो वर्ड है अर्जिलून, अर्जिलून का मतलब वही है कि जलील तरीन या कम दर्जे के या लोअर सोशो इकोनॉमिक के लोग। तो अब उन्होंने कौम ने क्या जवाब दिया, यही जवाब दिया कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, क्योंकि तुम्हारे साथ तो जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, वो हैं जो हमारे बड़े ऑर्डिनरी से लोग हैं। और होता यही है कि हमने देखा है कि बहुत सी जो है इस्लाम की तालीमात जो हैं वो कई दफ़ा गरीब लोग हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। बहुत से लोग जो हायर सोशो इकोनॉमिक के सोसाइटी में के लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कई दफ़ा इस्लाम रिलिजियसली नहीं उनका इतना बेंट होता। और अगर इतना बेंट नहीं होता, तो फिर लोग क्या करते हैं, यही समझते हैं कि रिलिजन को उसके साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, और फिर विदाउट जजिंग उनको सोशो इकोनॉमिक उनके स्टेटस से उनको जज किया जाता है। और ये कहा जाता है कि जी इस्लाम ये जो रिलीजन है तो बस फारिग लोगों का काम है, या ये रिलीजन है या जो नमाजें पढ़ने हैं, ये वो लोग हैं जो फारिग हैं, बस उनको और कोई काम नहीं है, तो बस वो अपने आप को लुक बिजी करने के लिए नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, या बिल्कुल जिनको दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर वो करते हैं। वो कहते हैं दीन और दुनिया डिफरेंट है। दीन पे जो चल रहे हैं वो फिर एक उनका अलहदा तरीका है, और जो दुनिया में चल रहे हैं उनका एक अलहदा तरीका है, दे आर डिफरेंट। और जब उन्हें कहते हैं कि नहीं दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना है, तो वो फिर बड़ा मुश्किल लगता है उनको। तो कहते हैं ए वन वे ट्रैफिक होनी चाहिए। तो वन वे ट्रैफिक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहे बिल्कुल नहीं कहा कि होनी चाहिए। इस्लाम में तो टू वे ट्रैफिक ही है कि दीन भी लेके चलना है और दुनिया भी लेके चलनी है। और सेम उन्होंने उनको आर्ग्यूमेंट दिया कि भई अपर क्लास तो तुम्हारे उसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, तो हम तुम्हें क्यों फ़ॉलो करें? क्योंकि हमेशा ट्रेंड सेटर्स जो होते हैं वो अपर क्लास वाले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं इम्प्रेस होते तुम्हारी इस बात से। अच्छा जी, अब नूह अलैहि सलाम ने क्या जवाब दिया? हाँ, हाँ, नूह अलैहि सलाम ने 112 में कहा, मैं क्या जानूँ कि इसके अमल कैसे हैं? अ, 113, इनका हिसाब तो मेरे रब के ज़िम्मे है, काश तुम कुछ शऊर से काम लो। 114, मेरा काम ये नहीं है कि जो ईमान लाएँ इनको मैं धत्कार दूँ। 115, मैं तो बस एक सिर्फ़ साफ-साफ मुतनब्बा कर देने वाला आदमी हूँ। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है, ये कौन लोग हैं और उनका कैसा अमल है और वो कैसे हैं। तो उन्होंने आंसर दिया कि ये तो अमल से उनके जज होगा। तो ये जो जजमेंट का तरीका हमारे यहाँ भी है ना, हमारे यहाँ भी यही जजमेंट का तरीका आ गया कि एटीट्यूड यही आ गया कि जो है पैसे से जज किया जाए।
क्योंकि जो भी चीज़ है जिसको पास जितनी ज़्यादा दुनियावी स्टेटस होता है, उसको हम उतना ज़्यादा प्रेस्टिजियस समझते हैं, उसकी बात को हम उतना फ़ोकस करते हैं, उससे हम उतना ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, ठीक है? और ये किसी ने क्या इतनी खूबसूरत बात की थी कि सम पीपल आर सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज़ जस्ट मनी, कि उनके पास और कुछ भी नहीं होता सिवाय पैसे के। बट ये है कि हम लोग मतलब अफ़सोस की बात है कि सिर्फ़ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और पैसे से ही जो है ना इम्प्रेस होते हैं, और उन्होंने डेफ़िनिशन ही बदल दी ना, यानी कि जो अल्लाह सुब्हानह तआला ने डेफ़िनिशन क्या दी है कि जिसका अमल अच्छा है। अल्लाह सुब्हानह तआला ने डेफ़िनिशन दी जिसके किरदार अच्छा है, जिसका दिल साफ़ है, वो मुत्तकी है। जो अल्लाह ताला को फ़ॉलो करेगा, जो अल्लाह के पैगामात को फ़ॉलो करेगा, वो मुत्तकी है। जो तकब्बुर नहीं करेगा, जो माँ-बाप का नाफ़रमान नहीं होगा, जो अमानत में ख़यानत नहीं करेगा, जो चोरी, डाका, बेईमानी, जुआ, शराब ये सब नहीं करेगा, वो मुत्तकी होगा। ये है डेफ़िनेशन एक अच्छे सोसाइटी के इंसान की, जो जिसके पास लोग महफ़ूज़ रहें, जो अमानतदार हो, इमानतों को रखने वाला हो, जो जिसको महफ़ूज़ समझे उसके पास आना-जाना। उसकी डेफ़िनेशन को चेंज करके क्या बना दिया गया कि सबसे प्रेस्टीजियस कौन है? हूएवर हैज़ मोर मनी। तो ये चीज़ें जो हैं उस वो ज़माने में भी देखिए चल रही थी, और अगर हम आज देखें तो इट्स नॉट डिफरेंट। तभी तो कुरान पाक पूरे ऐसे कहते हैं ना एंड तक ही रहेगा, क्योंकि जो उस ज़माने में हालात चल रहे हैं, वही हालात आज भी चल रहे हैं, और आज भी जैसे उस ज़माने के लोगों की सोच थी, सेम ही सोच आजकल के लोगों की है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्लियरली कहा कि मुझे क्या पता कि उनकी क्या, तुम उन लोगों को कह रहे हो कि आपके पास लोअर से सोशो इकोनॉमिक टाइप के लोग या ज़लील लोग हैं जो आपके साथ शामिल हैं, तो मैं तो उनको जज नहीं कर सकता। उनके अमाल तो अल्लाह सुब्हानह तआला को पता है, और उनका हिसाब तो अल्लाह सुब्हानह तआला के पास है। और फिर बाकी कहा कि लव तशअरून, कि काश तुम लोग कुछ शऊर रखते, काश तुम लोगों को कुछ समझ होती, काश तुम लोग कुछ अकल रखते कि देख सकते, बियॉन्ड दैट देख सकते। और फिर ये कहा कि मेरा तो ये काम नहीं कि ऐसे लोग जो अल्लाह सुब्हानह तआला की राह में मेरे साथ हों, जो अल्लाह सुब्हानह तआला के ऊपर ईमान लाएँ, तो मैं उनको धुतकार दूँ तुम्हारे लिए या तुम्हारे किसी उसके लिए। तो ये तो मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ़ ये है कि मैं तुम्हें वार्न कर दूँ। और वार्निंग देखें हर चीज़ की दी जाती है। वेदर वार्निंग हम देखते हैं ना, वेदर वेदर एडवाइज़री आ रही है कि जी स्नो स्टॉर्म है, ये है, वो है, आप सॉल्टिंग कर लें, आप ये कर लें, आप ट्रैवल नहीं करें, ट्रैवल एडवाइज़री है, फॉग है, नज़र नहीं आएगा। तो सारी हम वार्निंग्स के ऊपर बहुत गौर करते हैं कि क्या वार्निंग है, क्या वेदर है, उसकी हमें फ़िक्र है। लेकिन जो वार्निंग अल्लाह सुब्हानह तआला हमें दे रहे हैं, वो हम उसकी फ़िक्र कई दफ़ा भूल जाते हैं कि जो अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा है कि तुम लोग जो हो उस दिन से मुतनब्बे हो जाओ जिस दिन तुम लोगों का हिसाब होगा। तो वो हम वार्निंग नहीं ले रहे, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, या अपने दिन और रात उसके हिसाब से नहीं गुज़ार रहे। तो और दुनियावी वार्निंग के लिए हम बड़े अलर्ट हैं, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि मैं तो सिर्फ़ वार्न करने वाला हूँ, मुझे तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने वार्निंग के लिए भेजा है। अब क्या जवाब देते हैं 116 में? उन्होंने कहा है नूह अलैहिस्सलाम, अगर तू बाज़ ना आया तो फिटकारे हुए लोगों में शामिल होकर रहेगा। 117 नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया। 118 अब मेरे और इनके दरमियान दो टोक फैसला कर दे, और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं इनको निजात दे दे। अच्छा, अब ये फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क्योंकि इनसे बहुत तंग आए और बहुत परेशान हुए, तो फिर क्या हो गया कि उन्होंने दुआ कर ली अल्लाह सुब्हानह तआला से कि मुझे जो है वो, मुझे और मेरे जो ईमान लाने वाले या घर वाले हैं या साथ वाले जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको तो इनसे जो है वो हमें पनाह दे दे। देखिए बहुत-बहुत मुश्किल बात होती है। जैसे जब तबलीग इतनी-इतनी लंबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने की, एक एसोसिएशन होती है, एक मेहनत होती है, अनथक मेहनत, एक एफर्ट, बहुत से सालों का काम उसमें शामिल होता है। लेकिन जब बहुत ही वो थक जाता है इंसान, तो फिर वो इस तरह की दुआ करता है। जैसे आप इसी तरह समझे कि एक माँ अपने बच्चे से इतनी तंग आ जाए कि फिर उसके लिए ऐसी दुआ कर ले कि वरना तो माँओं को कितनी मोहब्बत है ना बच्चों से, ऐसी बात नहीं कर सकती। इसी तरह नबियों को भी अपनी कौमों से मोहब्बत होती है। तो इसीलिए अनथक बगैर उनसे किसी रिवॉर्ड के वो कॉन्स्टेंटली उनको तबलीग करते रहते थे। और फिर ये क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। 119 में है, आखिरकार हमने इसको और इसके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में बचा लिया। 120 और इसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। 121 यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। तो अब क्या हुआ कि फिर उसमें तकरीबन 80 जोड़े हमने देखा कि 80 लोग थे जो उस कश्ती में सवार हुए, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो उनको बचा लिया और बाकी सबको गर्क कर दिया। तो अब हमें क्या सबक, इससे बहुत से हमें जो है वो सबक मिलते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं।
हमने ये हुँ, सबक लिया कि हमें डर होना ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या सबक लिया कि अतियुर रसूल था, तो हम ये कह सकते हैं कि रसूलों की इताअत के बगैर तक़वा हासिल नहीं हो सकता। इसलिए और हमने क्या सबक लिया कि वर्ल्डली स्टेटस के को देखे बगैर हमें जो है वो देखना लोगों से दोस्ती अल्लाह के लिए करनी चाहिए। वर्ल्डली स्टेटस देख के दोस्ती अगर हम करेंगे तो फिर वही बात हमारी हो जाएगी। और फिर बात क्या और हम क्या सबक सीख सकते हैं कि मेजॉरिटी इट हैज़ नो अथॉरिटी। तो कहते हैं ना मेजॉरिटी हैज़ अथॉरिटी, ये उलट है क्योंकि बहुत से थोड़े लोग ईमान लाते हैं। तो यूजुअली अब हम ये देखते हैं कि हम भी मेजॉरिटी के पीछे ट्रेंड्स के पीछे जाते हैं, तो हमें से यहाँ से सबक मिलता है कि कोई भी ईमान नहीं लाया था। बहुत से थोड़े से थे जो कश्ती में 80 लोग थे सिर्फ़। तो इससे साबित होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम मेजॉरिटी के पीछे भागें। और फिर क्या है कि इंसान की जो वैल्यू है, वो उसके अमल से होती है, उसकी दौलत से नहीं होती। तो जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं जो इल्म की मजलिस में होते हैं, जैसे हम कुरान की क्लास है हमारी, इसमें जैसे होते हैं तो हर किस्म के लोग आते हैं, वरना दोस्तियों के क्या तरीके होते हैं, जैसे आपका जहाँ काम है वहाँ आपकी दोस्तियाँ हो जाएँगी, जहाँ आपके बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ दोस्तियाँ हो जाएँगी, प्रोफ़ेशन है एक जैसे कोई डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टरों में दोस्तियाँ होंगी, टीचर्स हैं, टीचर्स में होंगी जो भी जहाँ भी उसका वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ दोस्तियाँ हो जाती हैं, या फिर स्पोर्ट्स आप कोई खेलते हैं, उधर जाते हैं, जिमिंग के लिए चले गए, स्विमिंग के लिए चले गए, गोल्फिंग के लिए चले गए, तो वहाँ दोस्तियाँ बन जाएँगी। तो यही है ना कि जिधर आप जाते हैं बेसिकली दोस्तियाँ वहाँ हो जाती हैं। तो वो सेम इंटरेस्ट के लोग होते हैं। सिमिलरली जो भी कुरान क्लास में हम लोग आते हैं तो सेम इंटरेस्ट हमारा होता है कुरान क्लास में, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर किस्म के लोग आ सकते हैं। अमीर भी आएँगे, गरीब भी आएँगे, हर प्रोफ़ेशन के भी आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफ़ेशंस के लोग आ सकते हैं हैविंग द सेम इंटरेस्ट। तो ये भी एक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें हमें जो है अल्लाह के लिए या साले दोस्तियाँ जैसे हम कहते हैं वो बनने का इसके अंदर साथ हमारे पास एक ज़रिया है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपस में ताल्लुकात भी अपने ज़्यादा करें कि हम भी आपस में दोस्तियाँ अपनी मज़बूत करें इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं 122 में। अभी एक तो बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कही कि यकीनन इसमें एक निशानी है 121 में, मगर इसमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं, और 122 में हकीकत ये है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहम भी करता है अगर कोई माफ़ी माँग ले, और ज़बरदस्त है अगर कोई अड़ जाए तो। 123 में अब हम कौम आद के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। आद ने रसूलों को झुठलाया। 24 याद करो जबकि इसके भाई हूद ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? 125 मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। 26 लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। अब देखिए ये सेम जैसे हमने ज़िक्र किया था ना, रिपीट हो रहा है, तो इसमें वो रिपीट आए। पहली बात तो वही कि याद करोगे जबकि इनके भाई हूद ने कहा, कि वही बात उनके भाई हूद ने, पहले था उनके भाई नूह ने, अब आया उन्हीं के कौम में से हूद अलैहिस्सलाम आए, तो उनके भाई हूद ने, और फिर वही सवाल किया, अला तत्तकून कि तुम क्या डरते नहीं हो? और फिर वही कि मैं एक अमानतदार रसूल हूँ। तो देखिए अमानत रखनी भी बहुत ज़रूरी बात है ना। अमानत जैसे है कि किसी की बात भी अमानत है, किसी के पैसे भी अमानत हैं, किसी की जो भी हम चीज़ देखते हैं वो जो है वो उसमें कोई आप के पास जो है वो अपनी एक कोई बात करे या एक पैगाम पहुँचाना, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम पहुँचाना भी अमानत है, जैसे मशवरा भी किसी को देना एक अमानत है। तो ये चीज़ आती है कि ये एक अमानतदार होना जो है, ये एक नबियों का शेवा है, ठीक है? तो फिर उन्होंने वही बात की कि मैं तो एक अमानतदार रसूल हूँ, और फिर कहा कि वही बात फत्तकुल्लाह व अतीऊन, कि तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। तो फिर एक दफ़ा दोबारा आया कि रसूलों की अताअत जो है वो बहुत ज़रूरी है। 127 मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के पास है। तो वही बात सेम कि कोई उनको दुनियावी फ़ायदा उसमें से नहीं होता था। अब ये क्या तालीमात थी उनकी जो वो हम पढ़ते हैं कि तालीमात उन्होंने क्या दी? 28 में ये तुम्हारा क्या हाल है कि हर ऊँचे मुकाम पर ला हासिल एक यादगार अमानत बना लेते हो और बड़े-बड़े कसर तामीर करते हो, गोया तुम्हें हमेशा रहना है। और 130 और जबकि किसी पर हाथ डालते हो, जब्बार बनकर डालते हो। अब क्या बात कही कि उन्होंने कहा कि जो रिसोर्सेज़ तुम यूज़ कर रहे हो, ये रिसोर्सेज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मिले हैं, ये एक अमानत है। और ये रिसोर्सेज़ तुम किस तरह यूज़ कर रहे हो, कि क्या तुम लोग कर रहे हो कि बड़े-बड़े ऊँचे मकाम पे यादगार इमारतें बना रहे हो, बड़े-बड़े महल तामीर कर रहे हो, जैसे तुम्हें हमेशा दुनिया में ही रहना है। तो उनको ये बताया जा रहा है कि जो पैसा है, जो फाइनेंसेस हैं, वो कैसे खर्च करने हैं।
کہ یہ ریسورसेज़ جو अल्लाह सुब्हान तआला ने दिए हैं, ये जो दौलत दी है, जो मेहनत दी है, जो लोगों की मेहनत लग रही है, एक एफर्ट लग रही है, मज़दूरी लग रही है, टाइम लग रहा है, ये सब जो स्पेंडिंग हो रही है, क्योंकि हमें अल्लाह सुब्हान तआला क्या अपना टाइम भी लगाना है, अपना जो है हमें अपनी एनर्जी भी उसी में लगानी है, अपना पैसा भी उसी में लगाना है। तो ये तीनों चीज़ें जो तुम टाइम, पैसा और एनर्जी जो लोगों की वेस्ट कर रहे हो, किस चीज़ में? इमारतों पे इमारतें बनाने में, शानदार महल बनाने में, वो किसके काम आएँगे? या तुम्हें हमेशा पूरी ज़िंदगी यहीं रहोगे? तो देखिए ये मॉडर्न वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना, पुराने ज़माने में देखते थे बड़े-बड़े स्टैच्यूज़ बनते थे, कोई बादशाह होता था और बादशाह को फिर ये कहने के लिए उसको वाह-वाह करने के लिए उसे कह देते थे कि अब आपका एक स्टैच्यू बना देते हैं, तो बादशाह का एक स्टैच्यू बन जाता था। फिर वो उसके साथ बड़े-बड़े महल और उन्हीं को देखते हैं लोग, ऐसे-ऐसे खूबसूरत चर्चेज़ भी बने हुए हैं। तो उस चीज़ को वाक़ई है कि अल्लाह के रिसोर्सेज़ ऐसी चीज़ों पे ज़ाया नहीं करने चाहिए क्योंकि उसका किसको फ़ायदा है? अब देखिए अब तो चेंज हो गया ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है, कोई इस तरह के स्टैच्यूज़ नहीं बनते, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती बल्कि वो लोग जो हैं वो क्योंकि हर कोई पूछता है ना कि टैक्स पेयर के पैसे हैं किधर जा रहे हैं? इट्स अ टैक्स पेयर मनी इसको आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं? तो अब क्या होता है यहाँ पे लाइब्रेरीज़ बनती हैं और डिफरेंट जो है वो फलाही काम होते हैं, जिस तरह की चीज़ें बनती हैं इसमें लोगों को फ़ायदा हो, उसी पे टैक्स पेयर मनी यूज़ होता है जिसका इन इन द एंड सड़कें बने, कुछ बने, लाइब्रेरियाँ बने, वॉशरूम्स बने, लोगों को फ़ायदा हो। ऐसे ही हमारे मुल्क में भी अगर आपने जितनी भी अगर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं, को मीनार-ए-पाकिस्तान बना, चलें सब कुछ बना, पैसे आपने लगा दिए उस पे, लेकिन देखिए ना बेसिक चीज़ें नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, पब्लिक वॉशरूम्स नहीं है और अभी भी क्या है कि मॉल्स बड़े-बड़े बन रहे हैं। शॉपिंग की चीज़ें बड़ी-बड़ी बन रही हैं, लेकिन क्या है कि जो ज़रूरत की जो चीज़ें होनी चाहिए, वो उस तरह नहीं प्रोवाइड हो रही। तो ये इसमें उनको ये लेसन दिया जा रहा है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर पैसे लगाना, जिसका ऐसे रिसोर्सेज़ यूज़ करना जो सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। जैसे कि ताजमहल बना दिया ना, अब सोचिए 1653 में ताजमहल बनाया और उसने बादशाह अकबर ने और उसके ऊपर उस वक़्त तकरीबन 32 मिलियन रुपीज़ लगे थे, जो अब के हिसाब से शायद बिलियंस हों और उस ताजमहल का किसी को क्या फ़ायदा? सिवाय इसके कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक बादशाह था और उसने ऐसे किया। इसी के मुकाबले में यूरोप का एक बादशाह था और उसकी भी वाइफ़ जो थी वो ऐसे ही जो है वो बेबी बर्थ में उसकी डेथ हो गई जैसे बादशाह अकबर की वाइफ़ की हो गई थी। तो उसने क्या कहा उसने कहा कि मैं बहुत सारी मिडवाइफ़्स ट्रेन करूँगा ताकि जो है लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और कोई भी किसी भी औरत की इस तरह से डेथ ना हो। तो वो उसका फ़ायदा हो गया ना जो रिसोर्सेज़ उसने ऐसे यूज़ किए कि लोगों को ट्रेन किया, मिडवाइफ़्स आ गई ताकि लोगों को फ़ायदा हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर हमें जो है वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जो है वो इनके बारे हज़रत हूद ने इनको पूरी फाइनेंशियल सेंस, बिज़नेस सेंस या ये समझाया कि कहाँ पर तुमने जो है पैसे स्पेंडिंग कहाँ करनी है। अच्छा जी 130 और फिर एक और बात ये कही और जब किसी पे तुम हाथ डालते हो तो जब्बार बन के डालते हो कि ये भी कहा कि जब तुम लोग बहुत अपने इसमें अपने आप में अपने तकब्बुर में हो कि ये तुमने अपने महल बना लिए, इमारतें बना ली और वो इतने बड़े-बड़े वो जो थे कौम आग थी वो माउंटेन्स के अंदर तराश लेते थे ना, तो वो जो तुमने बना लिया तो उससे तुम लोग में बहुत तकब्बुर अपने आप को कोई चीज़ समझने लग गए हो ना और उससे फिर ये है कि जब भी किसी और से तुम बात करते हो तो बड़े जाबिर बन जाते हो। तो होता यही है कि जब तकब्बुर आ जाता है तो फिर आप दूसरों को बड़ा छोटा समझने लग जाते हैं। तो उस बात का उनको जो है वो वार्न किया कि तुम अपने आप को इन चीज़ों से तुम अपने आप को इंसान कुछ ख़ास समझने लग जाता है और फिर उसी से ही अल्लाह सुब्हानहू तआला का भी इनकार कर देते हैं कि ये डर होता है कि कहीं ये ना हो कि हमें हमें इसमें से कुछ देना पड़ जाए। अब फिर वही उनको सेम बात कही कि फत्तकुल्लाह व अतिऊन बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो और 132 डरो उससे जिसने वो कुछ तुम्हें दिया है जो तुम जानते हो। 133 तुम्हें जानवर दिए, औलादें दी। अब उनको ज़रा बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने क्या-क्या नेमतें दी। तुम्हें जानवर दिए, तुम्हें औलादें दी, तुम्हें बाग दिए जन्नतिन व अयून बाग दिए और चश्मे दिए और 35 और तुम्हारे हक में एक बड़े दिन के अज़ाब मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े दिन के अज़ाब का डर है। और कहा कि तुम्हें इतनी जो नेमतें दी हैं वो देखो, उन पे गौर करो, ये सब चीज़ें तो पैसे से नहीं आई ना, ये तो अल्लाह ताला ने बाग, चश्मे, औलादें, जानवर ये तो अल्लाह ने दे दिए। तुम्हारे हाथ बस में तो नहीं है कोई औलाद पैदा कर सको, तुम्हारे बस में तो नहीं है जानवर ला सको, तुम्हारे बस में ये बाग और चश्मे तो अल्लाह ने दिए हैं, बगैर किसी पैसे के तुम्हें दे दिए, तो अल्लाह को पहचानो और अगर नहीं पहचानोगे तो फिर मुझे डर है कि तुम्हारे हक हक में एक बड़े अज़ाब का डर है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया 136 में कि उन्होंने जवाब दिया तू नसीहत कर या ना कर हमारे लिए यकसा है। अ, अब ये क्या होता है अभी भी ऐसी उन्होंने ये बात की कि नसीहत करें या ना करें हमारे लिए बराबर है। होता यही है, कई दफ़ा जब हम
कर रहे होते हैं ना, तबलीग कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, अल्लाह की बात कर रहे हैं, तो कई दफ़ा होता यही है कि लोग जो है कई दफ़ा नहीं भी उसको सुनते या सुन लेते हैं, सुन के चले जाते हैं लेकिन उस पे एक्ट अपॉन नहीं करते। वो सुन लिया और चले गए और फिर एक्ट अपॉन नहीं किया, तो वो फिर बात वही हो गई, नसीहत करें या ना करें, बराबर होगी। ठीक है? तो वो हमने नहीं करना इंशाअल्लाह ताला। अच्छा 137 है, ये बातें तो यूँ ही होती चली आई हैं। 138 और हम अज़ाब में मुब्तला होने वाले नहीं हैं। अब उन्होंने कहा कि ऐसे तो तुम जैसे तुम कह रहे हो, ऐसे तो पहली ही दफ़ा भी बड़ा तुमने हमें अज़ाब से डराया है, लेकिन कभी कोई अज़ाब वग़ैरह आया नहीं। 139 आखिरकार उन्होंने उसे झुठला दिया और हमने उनको हलाक कर दिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर उनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। तो फिर वही आ गया कि एक सबक है और उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और फिर हमने यहाँ पर ये जो पढ़ा है कौम आद के मुतल्लिक, उसमें से क्या है जो हमने यादगारें बनाते थे, वो ये करते थे, तो हमें सबक क्या हासिल हुआ कि हमने ऐसे रिसोर्सेज़ स्पेंड करें जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। और अब हम देखते हैं जी, रिसोर्सेज़ की गाइडेंस आ गई और फिर ये कि नुमाइशें, इतनी नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि देखें, जितने अमीर लोग होते हैं जब वो कोई शादी करते हैं, कुछ करते हैं, तो सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे बातें भी हम उनके रिसोर्सेज़ से करते हैं कि उफ़! लाखों के फूल थे, लाखों का जोड़ा था, ऐसे था, फिर उनको देख के और लोग कॉपी करते हैं। तो सारे जो सेलिब्रेशंस हैं और ये चीज़ें हैं उसमें कितने ही पैसे जो हैं वो ऐसे वेस्ट कर दिए जाते हैं सिर्फ़ नुमाइश की खातिर। तो इस सब से हमें परहेज़ करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। अब हम आते हैं कि फिर उन्होंने इनकार किया और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको झुठला दिया और आखिर में 140 में फिर वही, और हकीकत ये है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी। इसमें फिर वही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कही। अब अगली कौम का ज़िक्र आ गया 141 से ऊपर, कौम समूद का। समूद ने रसूलों को झुठलाया। 42 याद करो जबकि इनके भाई सालेह ने अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? 142 मैं तुम्हारे लिए एक ईमानदार रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। 145 मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। 146 क्या तुम उन सब चीज़ों के दरमियान जो यहाँ हैं बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे? इन बागों और चश्मों में, और 148 इन खेतों और नखलिस्तानों में जिनके कोशे रस भरे हैं। 149 तुम पहाड़ खोद खोद के फखरियां इनमें इमारतें इमारतें बनाते हो। 140 अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। 151 उन बेलगाम लोगों की अताअत ना करो। 150 जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और कोई इस्लाह नहीं करते। 153 उन्होंने जवाब दिया, तू महज एक सहरज़दा आदमी है। 154 तो हम जैसे एक इंसान के सिवा और क्या है? ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। अब इनको जब सेम जो है वो तबलीग की गई, हज़रत जो है सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने जो समूद को थे उनको ये कहा कि वही बात कि तुम लोग जो है ये रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करो और अच्छी चीज़ों पे लगाओ, पब्लिक की यूज़ की चीज़ें बनाओ, और बताया गया कि जो स्पेंडिंग है ये उस तरह नहीं करनी चाहिए। स्पेंडिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बताया कि ये जो बिगड़े माशरे होते हैं उनमें ऐसी स्पेंडिंग होती है कि टू मच सेलिब्रेशंस के ऊपर स्पेंड किया जाता है, टू मच ऐसी चीज़ों पे वेस्ट किया जाता है जिस पे वेस्ट ना किया जाए उसको सेव करके लोगों के फ़ायदे की चीज़ों पे लगाया जाए। तो वही बात की कि इससे सिर्फ़ अपना तकब्बुर तुम लोग बढ़ा रहे हो। तो उन्होंने क्या किया अपने लिए, एक तो ये है कि माना नहीं और फिर कहने लगे अपने लिए क्या माँग लिया? निशानी माँगी कि अगर तुम हो तो हमें एक निशानी ला के दिखाओ। अच्छा अब निशानी इन्होंने माँगी 154 में। तो हम जैसे एक इंसान के सिवा और क्या है? ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। तो निशानी उन्होंने माँगी। अब 155 में वो निशानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी और वो तो नाक़तुल्लाह थी। तो क्या कहा सालेह ने कहा ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पीने का है और एक दिन तुम्हारे सबका। जब इब्न कसीर में जब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वो लोग जो थे जब उन्होंने निशानी माँगी तो उन्होंने कहा कि हम आपसे मैं वहीं से पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा आपसे वैसे उनसे पूछा क्या तुम क्या मोज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा ये सामने जो पत्थर की बड़ी सारी चट्टान है, ये हमारे देखते ही फटे और इसमें एक गाभन ऊँटनी इससे इस रंग की और ऐसी-ऐसी निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अच्छा अगर मैं रब से दुआ करूँ और यही वो मोज़ा मेरे हाथों तुम्हें दिखा दे, फिर तुम्हें मेरी नबूवत के मानने में कोई उज़र तो ना होगा? यानी उनसे पक्का कहा कि अब अगर मैं ये मोज़ा दिखा दूँ तो फिर तुम मान जाओगे? सबने पुख्ता वादा किया, कौल इकरार किया कि हम सब ईमान लाएँगे और आपकी नबूवत मान लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्दी ये मोज़ा दिखाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त नमाज़ शुरू कर दी, फिर अल्लाह ज़ुल जलाल से आपने दुआ की और उसी वक़्त वो पत्थर फटा और उसी तरह एक ऊँटनी उनके देखते हुए इसमें से निकली। कुछ लोग तो हस्बे इकरार मोमिन हो गए। लेकिन अक्सर लोग
بھی फिर काफ़िर के काफ़िर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो एक दिन ये पानी पिएगी और एक दिन पानी की बराबरी तुम्हारी मुकर्रर रहेगी। तो अब क्या हुआ, ऊँटनी अपनी आँखों से बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने डिमांड किया था पहाड़ में से निकलती हुई आ भी गई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि फिर भी कुछ ही लोग ईमान लाए। और उसके बाद जब वो अल्लाह ताला की ऊँटनी आ गई तो नाक़तुल्लाह थी, तो वो क्या होता था, जब पानी पीने का था तो एक दिन वो पानी पीती थी और एक दिन बाकी सब लोग पानी इस्तेमाल करते थे। तो हुआ क्या, तो वो तो एक ही वक़्त में सारा पानी पी जाती थी और आहिस्ता-आहिस्ता इन लोगों को वो बुरी लगने लग गई। अब यही उन्होंने कहा कि अब सुनो, एक दिन ये पानी पिएगी और एक दिन पानी की बारी तुम्हारी मुकर्रर है। अब तुम में से कोई इससे बुराई ना पहुँचाए, वरना बदतरीन अज़ाब तुम पर आ पड़ेगा। अब एक अरसे तक तो वो लोग रुके रहे। ऊँटनी इनमें रही, चारा चुगती, अपनी बारी वाले दिन पानी पीती। इस दिन ये लोग इसके दूध से सैर हो जाते। तो जिस दिन वो खाती-पीती, वो दूध भी बहुत देती। वो लोग वो दूध पीते। लेकिन एक मुद्दत के बाद इनकी बदबख्ती ने इन्हें आ घेरा और इनमें से एक मलून ने ऊँटनी को मार डालने का इरादा किया और कुल अहले शहर इसके मुवाफ़िक हो गए, यानी सारे लोग मिल गए। उन्होंने कहा कि ये तो सारा पानी पी जाती है, सारा चारा खा जाती है, हमें इसका क्या फ़ायदा, इससे जान छुड़ाओ। चुनाचा इनकी इनकी कूंचे उसने उनकी कूंचे काट कर इसे मार डाला। अब मारा तो एक आदमी ने था, लेकिन सज़ा सबको मिली। वो किस वजह से? कि बाकी सब जो थे, वो उसके अंदर शामिल थे। उन्होंने उसको शाबाश दी कि ठीक है, तुम कर लो। जिसके नतीजे में इन्हें सख्त नदामत और पशेमानी उठानी पड़ी। अल्लाह के अज़ाब ने इन्हें आ दबोचा। इनकी ज़मीन हिला दी गई और एक चीख से सब के सब हलाक कर दिए गए। दिल उड़ गए, कलेजे पाश-पाश हो गए और वहमो-गुमान भी जिस चीज़ का ना था, वो आन पड़ा। और ता आखिर सब गारत हो गए और दुनिया जहान के लिए ये खौफनाक वाक़या इबरत अफ़ज़ा हो गया। इतनी बड़ी-बड़ी निशानियाँ अपनी आँखों देखकर भी इनमें से अक्सर लोगों का ईमान लाना नसीब ना हुआ और इसमें कुछ शक नहीं है कि अल्लाह ताला ग़ालिब भी है और रहीम भी है। तो ये था इनका काम कि इन्होंने अल्लाह का मुआज़ा भी देख लिया और फिर भी उन्होंने उस बात पे यकीन नहीं किया। पर मैं अब ये तर्जुमा पढ़ देती हूँ। 155 में आया कि साले ने कहा, ये ऊँटनी है, एक दिन इसका पीने का है और एक दिन तुम सबके पानी पीने का। 156 इसको हरगिज़ ना छेड़ना, वरना एक दिन बड़े अज़ाब तुमको आ लेगा। 57 मगर लोगों ने इसकी कूंचे काट दी और आखिरकार पछताते रह गए और अज़ाब ने इन्हें आ लिया। 158 अज़ाब ने इन्हें आ लिया, यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें अक्सर मानने वाले नहीं हैं। 159 और हकीकत ये है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी। तो जी, यही फिर बात आ गई कि हमने वही निशानी देखी कि जब उनको मना किया कहा गया और उनको ये बात कही कि जो भी हमने चीज़ें हैं वो सलाहियत के तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारा वक़्त हो, पैसा हो, जो भी हमारा टाइम है, जो भी सलाहियतें हमारी, हमें अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर हमने अल्लाह ताला की निशानियाँ उनको पहचाने, उनको देखें और अगर उनसे इनकार करेंगे तो फिर अज़ाब के मुस्तहिक होते हैं। अब कौम लूत का ज़िक्र है 160 में। लूत की कौम ने रसूलों को झुठलाया। 61 याद करो जबकि इनके भाई लूत ने इनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं हो? 162 मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। 63 लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। 64 मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। 165 क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के पास जाते हो? अब इनका क्या काम था कि ये लोग जो थे वो होमोसेक्सुअल थे। तो अब उनकी ये बात आ रही है। पहले तो वो सेम ही चीज़ आई जो तमाम नबियों की बार-बार दोहराई जा रही थी, जिसमें ये क्या बताया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि एक यूनिवर्सैलिटी थी, तौहीद का एक अकीदा तो था, वो उसमें एक यूनिवर्सैलिटी थी। कितने-कितने पैगंबर कितने-कितने टाइम डिफरेंस से आए। एक में और दूसरे में कितने ही सालों का फ़र्क था और कितने डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में आए। कोई किसी जगह था, कोई किसी जगह था, लेकिन सब लोग एक ही बात कर रहे थे। दैट्स इटसेल्फ वाज़ सो स्ट्रेंज कि सब लोगों के पास एक ही बात कैसी थी, एक ही वर्डिंग कैसी थी। और उसकी वजह यही थी तभी बनती है ना कि उनका सोर्स एक हो। जब सोर्स एक होगा तो चाहे लोग जितनी भी दूर हों, तो बात एक ही करेंगे। तो इसलिए एक तो ये इसके अंदर हमें पता चलता है कि सेम रेपिटिशन से जब ये बात की जाती है और फिर अब डिफरेंट डिफरेंट कौमों की डिफरेंट डिफरेंट बुराइयां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई ताकि वो हमारे लिए सबक आमूज हो जाए। और कहा कि तुम लोग मर्दों के पास जाते हो। 166 और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है इसे छोड़ देते हो, बल्कि तुम लोग तो हद से ही गुजर गए हो।
अब ये क्या है कि देखिए पहले से हमेशा से इस बात को बहुत बुरा समझा जाता था ना होमोसेक्सुअलिटी को, बल्कि हर मज़हब में, इवन क्रिश्चियनिटी में और ज्यूज़ के रिलिजन में सब में ही इसको बुरा समझा जाता है। सिर्फ़ अब जो इसको अब हौसला अफ़ज़ाई इस ज़माने में मिल रही है, इससे पहले तो कभी नहीं मिली गई और कोई भी नहीं इसको जो है ना बैक करता था। अभी भी बहुत लोग रिटेलिएट करते हैं, ये लोग हैं बहुत थोड़ी तादाद में, लेकिन अब इनको ज़्यादा जो है वो इससे ज़्यादा जो है वो फिर भी लाइमलाइट में ये लोग आ रहे हैं और इस बात को बहुत डिस्कस किया जा रहा है, बल्कि प्रमोट किया जा रहा है। तो उसके लिए अब हमने सबक हासिल करना है, क्योंकि ये अब वो वाला फितना है जो कौम लूत का, अब आहिस्ता-आहिस्ता हमारी जनरेशंस को इसको जो है ना वो फेस करना पड़ेगा। 66 आया कि बीवियों के अलावा जो है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें तुम्हारी बीवियाँ दी हैं, औरतें दी हैं, उनके साथ तुम्हें बताया, बल्कि क्योंकि ये वाला जो अमल है जो होमोसेक्सुअलिटी में किया जाता है, ये बीवियों के साथ भी करना मना है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम औरतों के भी जज़्बात का जो है वो ख़्याल रखा है कि ये उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात का एहसास किया है औरतों के जज़्बात का, कि उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो, कि उनके साथ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बात से मना किया है। तो फिर डिफरेंट जेंडर के साथ करना तो बिल्कुल ही जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की जो है वो उससे उलट बात हो गई। 67 उन्होंने कहा, ए लूत, अगर तू इन बातों से बाज ना आया तो जो लोग हमारी बस्तियों से निकाले गए हैं उनमें तू भी शामिल होकर रहेगा। अब देखें यहाँ पर कहा मुखरजीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इन्होंने वार्निंग दी थी कि हम आपको स्टोन टू डेथ कर देंगे, ठीक है? और यहाँ उनको वार्निंग क्या दी है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को, कि मुखरजीन, कि आपको अपनी बस्ती से निकाल देंगे। उस ज़माने में हिजरत कर देना, अपने इलाके को छोड़ देना एक बहुत-बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होती थी, क्योंकि आप उनको छोड़ देते थे, तो फिर क्या होता था, उनको निकाल दिया तो आपके इंसान के पास कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं रहती थी। तो उसी बात का उनको जो है वो वार्निंग दी कि अगर तुम इतना करोगे तो हम तुम्हें इस बस्ती से निकाल देंगे। 168 उसने कहा, तुम्हारे करतूतों पे जो लोग कुढ़ रहे हैं, मैं उनमें शामिल हूँ। 169 ए परवरदिगार, मुझे और मेरे अहल-वयाल को इनकी बदकारियों से निजात दे। 117 यानी कि फिर उन्होंने भी दुआ कर ली अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने, कि मुझे और मेरे अहल-वयाल को उनकी बदकारियों से निजात दे, क्योंकि मुझे और मेरे अहल-वयाल कहा कि एक भी शख्स, कहते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं लाया था, एक भी। तो इसलिए उन्होंने अपने और अपने अहलो-अयाल के लिए ही माँगा। मेरी कौम के लिए नहीं कहा, वरना अक्सर नबी रसूल तो कहते थे ना, मेरे और मेरी कौम में से जो लोग ईमान लाए हैं उनको बचा लें। तो 170 में आया, आखिरकार हमने इसे और इसके सब अहलो-अयाल को बचा लिया। 171 बजुज़ एक बुढ़िया के जो पीछे रहने वालों में से थी। वही ज़िक्र हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ़ का हर दफ़ा आया, क्योंकि वो खुद ये काम नहीं करती थी, सिर्फ़ वो सपोर्टर थी। वो कहती थी कि ठीक है, जो ये कर रहे हैं उन्हें करने दो। तो हमारे पास अब क्या लेसन आया कि अब हम यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ़ खामोश नहीं रह सकते ना, हम ये नहीं कह सकते इट्स फाइन व्हाटएवर दे आर डूइंग, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। हम तो नहीं कर रहे, हम तो नहीं देख रहे, हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे। जो वो कर रहे हैं उनको करने दो। तो फिर हम क्यों करें? तो अगर हमने ये किया तो देख लें, हज़रत पैगंबर की वाइफ़ थी, उनको ऊपर अज़ाब आ गया। तो हम यहाँ पर इंडिफरेंट नहीं रह सकते कि व्हाटएवर इट इज़, व्हाटएवर दे आर डूइंग इट्स ओके। या हम ये नहीं कह सकते ठीक है उनको राइट्स मिल रहे हैं तो मिलने चाहिए। बल्कि हमें ये देखना है कि अगर किसी में कोई परवर्जन है तो वो वापस आए, वो अल्लाह ताला से रुजू करे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद माँगे कि या अल्लाह मेरी मदद फ़रमा कि मुझे इस किस्म की परवर्जन से मेरा ध्यान बटे। तो फिर जिस इंसान में परवर्जन है और वो अल्लाह से मदद माँगता है और वो चेंज करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद आती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको देता है। किसी में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेंडेंसी हैं, कोई साइकोपैथ्स हैं, तो किसी में क्रिमिनैलिटी है, किसी को चोरी की टेंडेंसी होती है, लोग चोरी कर लेते हैं बिला वजह, और किसी को मर्डर की टेंडेंसी होती है, लोगों को मर्डर करके मज़ा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, कि वो लोग जानवरों को सैडिस्ट से होते हैं और वो जानवरों को मारते हैं और उससे खुश होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आग लगा के जगह-जगह पे जो है वो उसको एन्जॉय करते हैं। तो वो इस किस्म की परवर्जन्स होती हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तिग़फ़ार माँगनी चाहिए और अल्लाह से मदद माँगनी चाहिए, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो फिर उनकी मदद करेंगे। तो बहरहाल जैसे हज़रत लूत की अलैहिस्सलाम की वाइफ़ के साथ हुआ, तो हमने वो चीज़ नहीं करनी, ये हमारे लिए सबक है। और 173 में फिर आया कि उन पर बरसाई एक बरसात, बड़ी ही बुरी बारिश थी जो इनके डराए जाने वालों पे नाज़िल हुई थी। तकरीबन 6 रातें आती रही बारिश, इनके ऊपर होती रही, पत्थरों की बारिश हुई, और फिर ये ऐसा काफ़ी बड़ा इलाका था जो डेड सी का इलाका, उसमें ये थे, और फिर ऐसे पत्थरों की बारिश हुई थी कि ऊँधी इनकी हो गई थी, छतें नीचे हो गई थी और ये खुद ऊपर। तो इस किस्म की बारिश इनके ऊपर आई थी। तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला उस चीज़ से हमें
सही सबक हासिल करने वाला बनाए। 174 यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर दफ़ा ये कह रहे हैं कि अक्सर लोग नहीं मानते, अक्सर लोग नहीं मानते, अक्सर लोग नहीं मानते। तो आज हम ये देख लें कि अक्सर लोग क्या कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। ये सोचने की बात है कि अक्सर लोग जिस रविश पे चल रहे हैं, उनको हम अगर फ़ॉलो करते रहेंगे तो कहीं हम नुकसान वाले ना हो जाएँ। क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि अक्सर लोग शादियाँ कैसे करते हैं, शादी तो होती ही इस तरह है, वो सारे तो मुसलमान ही हैं, वो इस तरह शादी करें, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन शादी कैसे कर रहा है। हमने ये देखना है शादी का एग्ज़ैक्ट इस्लामिक हुक्म कैसा है, तो हमने वैसे शादी करनी है। हमने ये नहीं देखनी कि लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, उसने इतने महँगा लिबास बनाया, चीज़ सिम्प्लिसिटी से भी हो सकती है। पैसे आपने खर्च करने हैं, आप लगा सकते हैं, लेकिन इतने नहीं लगाएँ कि बेबहा सेलिब्रेशन के ऊपर पैसे जो हैं वो आपके वेस्ट होते जाएँ। तो इतना वेस्टेज ऑफ मनी भी और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज़ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं। अच्छा जी, अब आए हैं 176 असहाबे एका ने रसूलों को झुठलाया। ये जो एका का इलाका है ना, ये ऐसे है जैसे तबूक का इलाका या इसको अहले मदयन भी कहते हैं। तो ये उनके या इनके साइड का इलाका था। तो ये इस हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का यहाँ पे ज़िक्र है। 177 में याद करो जबकि शुएब अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा था क्या तुम डरते नहीं हो? अला तत्तकून कि मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ फत्तकुल्लाह व अतीऊन लिहाज़ा तुम मुझसे डरो और मेरी अताअत तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। 180 मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। 181 पैमाना ठीक भरो और किसी को घाटा ना दो। अब इनकी कौम क्या करती थी? क्या इनका तकवा था? क्या इनका देखें इसमें हमने जो है ना बात की ना कि तुम अल्लाह से डरते नहीं हो तो तकवा का हमने अभी डिस्कस किया कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और सूरह तलाक में भी सूरह तलाक में भी हमें पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि जो मुझसे डरता है या जो तकवा को अख्तियार करता है तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला निजात का रास्ता निकाल कर देते हैं और ऐसी-ऐसी जगह से रिज़्क देते हैं जिसका उसने कभी गुमान ही नहीं किया होता। तो तकवा का एक तो फ़ायदा होता ये है कि हमें जो है अल्लाह जो है वो हमें निजात देते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क की फरावानी भी करते हैं और कहते हैं कि ऐसे-ऐसे रास्तों से मैं उनको रिज़्क देता हूँ कि जहाँ से उनको गुमान भी नहीं होता। तो इसलिए और फिर जो भी हम नेकी करते हैं वो तकवा के बगैर कबूल नहीं होती। यही हमने हाबील और काबील के वाक़ये में पढ़ा था ना कि जब उसने कत्ल कर दिया और फिर जो हाबील ने कहा कि क मेरी तो एक ही कुर्बानी कबूल हो गई थी और एक की नहीं हुई थी। तो हाबील ने कहा कि कुर्बानी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो तकवा के साथ कबूल करते हैं, तो नेकी में भी अगर तकवा होगा तो ही कबूल होगी। अच्छा जी, अब इन्होंने इनको अब एक और लेसन सिखाया जा रहा है, अदल का, तराज़ू का, बिज़नेस एथिक्स सिखाए जा रहे हैं कि देखिए अब कहते हैं ना इस्लाम का बिज़नेस और फाइनेंस से क्या ताल्लुक और हम ये पढ़ रहे हैं इन कौमों को जो है वो बिज़नेस और फाइनेंस ही सिखाया जा रहा है कि फाइनेंशियली कैसे रिसोर्सेज़ यूज़ करने हैं, एक हुकूमत कैसे यूज़ करेगी रिसोर्सेज़ और किस तरह जो है वो हेल्दी बिज़नेस प्रैक्टिसेस क्या हैं कि किस तरह जो है वो पैमाना ठीक भरो और इसे घाटा ना दो, इक्वालिटी ज़रूरी है, जिस पे जो स्पेंडिंग हो रही है उसको उसी इंसाफ से दो, क्योंकि अगर बिज़नेस फाइनेंस सही तरीके से चलेगा तभी फ्लरिश करेंगी ना हुकूमतें, लोगों को यकीन होगा कि ये लोग इतने ऑनेस्ट हैं। जैसे मतलब अगर आप बेईमानी करते हैं, कुछ करते हैं जो एक दफ़ा आपसे कर लेगा डीलिंग फिर नेक्स्ट टाइम आपसे डीलिंग नहीं करेगा ना। और ये सारी फाइनेंशियल सेंस होनी चाहिए और इसमें छोटी-छोटी चीज़ें हमारे ऊपर भी आती हैं ना कि हम कई दफ़ा देखिए जैसे यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी है, कई लोग इस रिटर्न पॉलिसी को बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं, कपड़े लिए, पहन लिए और फिर जाके रिटर्न कर दिए, तो बेईमानी हो गई ना एक तरह की। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए कि यूज़ कर लें और यूज़ की हुई चीज़ फिर उनको वापस कर दें। तो इस तरह इसको और फिर बदनाम भी हैं साउथ एशियन सारे के ये लोग रिटर्न पॉलिसी का जो है वो गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में तो नो रिटर्न पॉलिसी हो जाती है। तो ये सारे बिज़नेस एथिक्स होने चाहिए बल्कि कई दफ़ा कोई चीज़ आप लेकर आए वो ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो किसी न किसी झूठ तरीके से उनको उसको रिटर्न करके तो दूसरी ले ली। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम भी उन चीज़ों को सही से इस्तेमाल करें और बिला वजह की बेईमानियाँ नहीं करें और ये जिस तरह पोंज़ी स्कीमें क्या है, लोगों से पैसे ले लिए और झूठ बोल के पैसे लिए कि आपको इतने पैसे देंगे और उनके पैसे सब खा लिए। तो सारी बेईमानियाँ जो हैं उससे जो पैसे कमाना ये सब जो फाइनेंशियल अवेयरनेस की जा रही है कि ठीक-ठीक पैमाना भरो और किसी को घाटा ना दो। तो इससे ये है कि ये बताया जा रहा है कि तुमने इंसाफ करना है, जो भी तुम्हारा 182 है, सही तराजू से तोलो। इसको खुद देखो, इवैल्यूएट करो और किसी के साथ बेईमानी नहीं करो। 183 में और लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दो।
ज़मीन में फ़साद ना फैलाते फिरो। 2 बातें कि एक तो ये बातें कि कम दी और फिर फ़साद ना फैलाओ और फिर फ़साद ये छोटे-छोटे झगड़े और लड़ाइयाँ और कोई ना कोई इश्यू इकट्ठा करके उसकी तरफ लोगों की तवज्जो दिला के और खुद इधर बिज़नेस में फ़ायदे उठा लिए। जैसे जो ये वेपन्स बनाए तो कहीं पे लड़ाइयाँ की और वेपन्स की जिसकी इंडस्ट्री है तो वेपन्स बेचे तो फिर फ़ायदा हो गया, बिज़नेस का फ़ायदा हो गया क्योंकि फ़साद पड़वाए कि अब इनको वेपन्स चाहिए होंगे और फिर वेपन्स सेल किए। कि उन्होंने खुद ही ये किया कि हमारे तो वेपन्स बिक नहीं रहे तो चलो अब एक फ़ॉर्मूला बनाएँ, ये कहीं पे लड़ाई करवाएँ और जब फ़साद होगा तो उनको वेपन्स चाहिए होंगे तो फिर वेपन्स प्रोवाइड किए। तो इन सब चीज़ों से मना किया जा रहा है कि ये सब चीज़ें फाइनेंशियली जो है कि उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। अपने सिर्फ़ जो है वो पैसे को खुदा बना के नहीं चलना चाहिए, खुदा के हुक्म के मुताबिक पैसा खर्च करना चाहिए। 184 में और उस ज़ात का खौफ करो जिसने तुम्हें और गुज़िश्ता नस्लों को पैदा किया है। वही बात कि अल्लाह से खौफ खाओ, अल्लाह से डरो, ये जो बिज़नेस एक्यूमेन है ना तुम्हारा ये अल्लाह के मुताबिक होना चाहिए। और फिर इन लोगों ने 185 उन्होंने कहा ये महज़ एक सहरज़दा आदमी है, तो उन्होंने भी ऐसे हज़रत शुएब को झुठला दिया कि ये तो बस जादूगर ही आदमी है, तो बस ये ऐसी बातें कर के हमें बता रहा है, हम तो इतना अच्छा बिज़नेस एक्यूमेन है, हम तो इतने प्रॉफ़िटेबल हैं, हम तो इतना फ़ायदा करते हैं, हम कोई भी चीज़ ऊपर-नीचे करके जो है वो खूब फ़ायदा उठाते हैं और ये हमें उल्टी बातें बता रहा है। 186 और और तू कुछ नहीं मगर एक इंसान ही है हम जैसा, हमने तो तुझे बिल्कुल झूठा समझते हैं। तो अब कहने लगे कि हम तो तुम्हें झूठा समझते, तो हमारी तरह के इंसान हो, इतना क्या तुम हमें नसीहतें कर रहे हो? हम नहीं तुम्हें मानते। 187 अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। अब इन्होंने माँगा तो क्या माँगा? अज़ाब माँगा। ये क्या कह दिया हज़रत शुएब की कौम ने कि हम पे कोई ज़मीन का आसमान से कोई टुकड़ा गिरा के दिखा दो, इतने तुम अगर सच्चे हो तो। और 88 शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। उन्होंने उसे झुठला दिया और आखिरकार छतरी वाले दिन का अज़ाब उन पर आ गया और वो बड़े ही खौफनाक दिन का अज़ाब था। अब हज़रत शुएब ने कहा कि मेरा रब जानता है जो तुम कर रहे हो, अज़ाब मेरे कहने से नहीं आएगा, मेरी वज़ह से नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकता कि अज़ाब आए, वो तो वो जानता है कि तुम्हारे क्या करतूत हैं और क्या तुम्हारे अमाल हैं, तो वो हर किसी को एक मोहलत देता है, एक टाइम फ्रेम देता है, एक नसीहत देता है और नसीहत के बगैर कोई बंदा जो एक सही बात से वार्न कर दे, उसके बगैर किसी पे अज़ाब नहीं दाता, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के एथिक्स हैं, ये किसी पे ज़ुल्म ज़्यादती नहीं करते वो। और अब अगर तुम नहीं मानोगे, तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा और तुम्हारा अगर इनकार हद से बढ़ गया तो फिर अज़ाब आएगा। फिर यहाँ पर आया कि छतरी वाले दिन का अज़ाब आ गया उन पे। तो अब छतरी वाले दिन का अज़ाब क्या है? वल्लाहु आलम, हमें इसका उस तरह इल्म नहीं है, लेकिन ऐसे जैसे छतरी बन गई तो कई दफ़ा हम जैसे एटॉमिक बॉम्ब देखते हैं तो उसको भी मशरूम क्लाउड कहते हैं ना कि एटॉमिक बॉम्ब हुआ, देयर वाज़ अ मशरूम क्लाउड और ऐसे करके निकला। तो ये कुछ छतरी भी उसी तरह का फ़ेज़ लगता है, मे बी समथिंग लाइक दैट। वल्लाहु आलम, तो उसका जो है वो अज़ाब उनके ऊपर आया और वो तमाम उनकी ताकतें हलाक हो गई। 190 यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। और 191 है और हकीकत ये है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी है। इसलिए हमने कहा पढ़ें और आप लोग जो आएँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको इस बात का अजर दे और आपका आना कबूल फरमाए और आपके घरों में बरकतें नाज़िल फरमाए, रहमतें नाज़िल फरमाए और आप लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला स्पेशल इस चीज़ का कबूल करके बहुत-बहुत अजर दे। चलें फिर दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।